So good morning, everyone. In the previous lecture, we have the detailed about the polymer matrix composite. How do we generally form the polymer matrix composite? Polymer matrix composite, and we have some reinforcement in this. And reinforcement we use fibers. Fibers maybe the chopped fibers in the powder form or in the long fibers, and these may also be the synthetic or some natural fibers. So these things we have discussed, we have finished. How do we generally form a polymer? These things we have discussed in the previous lecture. Now moving to the next type of composite material are the next type of composite material are MMCs. MMC, that is metal matrix composite. Metal matrix composite. Okay. This PPT I have downloaded from the internet and I am going to discuss the same with you. So the contents for this lecture will be the introduction, what are the metal matrix composite, the classification of the metal matrix composite, a detail about the metal matrix composite, what is the base, the composition in a metal matrix composite, what is matrix, what is reinforcement, and how do we just produce and process the metal matrix composite, possible applications, and then for metal matrix composite for the space applications, and most important types of metal matrix composite system, and then advantages and disadvantages of MMCs. So these will be the contents for this lecture. Now moving to the first point, whenever we are going to discuss the conventional materials, so the conventional monolithic materials, the materials which are used in the single, there is no combination. So the conventional monolithic materials have some limitations. There are some limitations, there are some particular types of shortcomings because they have limitations in achieving good combinations of strength, stiffness, toughness and density. Obviously whenever we are using some materials, only monolithic materials are the types of material which are used in a single form, single material like iron only. If we are using iron, that is a monolithic material. So whenever we are just considering the iron, let it has some properties like it has good ductility, low strength. Suppose it has low strength, but whenever we want to we want some hardness in iron, we want some improvement in these properties, some improvement in this strength, some improvement in the density, toughness and any other properties that we want to introduce in a particular type of material, we have to be some modification in that type of material. अगर एक सिंगल मटेरियल को आप यूज करोगे जिसकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस भी होंगी, कि जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे स्ट्रेंथ तो है किसी मटेरियल के अंदर लेकिन वो स्टिफ नहीं है, ठीक है, मटेरियल के अंदर स्टिफनेस तो मतलब स्ट्रेंथ अच्छी है लेकिन वो स्टिफ नहीं है. दूसरा अगर ये सारी चीजें लेकिन वो टफनेस नहीं है उसके अंदर, डेंसिटी उसकी कम है या जो भी है डेंसिटी ज्यादा है, तो इन सारी शॉर्ट कमिंग्स को, इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? वी रिक्वायर सम कंपोजिट मटेरियल. ठीक है, to demand or to meet the industry demand, we require some different types of material. So to overcome these shortcomings of the monolithic material and to increase the demand or to compete the demand or to fulfill the demand of modern technology, composite materials or composites are the most promising materials that can be used in the recent technological area. ठीक है, तो जो मोनोलिथिक मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उन मोनोलिथिक मटेरियल्स की शॉर्टकमिंग्स को पूरा करने के लिए हमें कुछ ऐसे मटेरियल्स चाहिए जो उन शॉर्टकमिंग्स को पूरा करें, फुलफिल करें, और जो करंट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया में हम उनको इजीली यूज कर पाए. ठीक है, तो जो मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट है, तो द मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स possesses significantly improved properties including both the high specific strength, specific modulus, damping capacity, good wear resistance compared to the reinforced alloys. So these are the materials that are being used, that are being manufactured to overcoming the shortcomings of monolithic materials. ठीक है, monolithic materials की shortcomings को पूरा करने के लिए हम लोग metal matrix composite की बात करते हैं. Moving to the next, you can see over here. Yes, so you can see
द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स विद मेटल मैट्रिक्स। अगर हम मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट की बात करेंगे, उसको क्लासिफाई करने की बात करेंगे, तो जो आपके मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट हैं, अगर मेटल फेस की बात करेंगे तो बेसिकली आपके जो मेटल्स होते हैं ना, दो मेटल्स को आप व्हेन टू मेटल्स, दो मेटल्स होते हैं, जिसमें एक मेटल जो आपका होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा, और जो दूसरा मेटल है हम उसके अंदर क्या करेंगे, दूसरे मेटल को रीइंफोर्स करेंगे। तो इसके बाद जो आपका फाइनल मटेरियल बनता है, जिससे कि मोनोलिथिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है उसमें एक ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट देखने को हमें मिलता है, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट इज द मटेरियल दैट इज बीइंग फॉर्म्ड आफ्टर वी आर reinforcing other metal into the metal being used in the matrix। ठीक है, तो वो आपका मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट होगा। अगर मैंने बात की, मेरे पास एल्यूमिनियम था, ठीक है, ये मेरे पास एल्यूमिनियम था और इस एल्यूमिनियम के अंदर मैंने एल्यूमिना को मान लिया, एल्यूमिनियम के अंदर एल्यूमिना को मैंने इन्फोर्स किया, तो ये आपका मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट बन रहा है। ठीक है, तो जनरली अगर हम इसकी बात करेंगे तो मेटल फेसेस के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। डिस्पर्जन, हार्डन्ड एंड प्लास्टिक कंपोजिट हो गया, लेयर कंपोजिट हो गया, लैमिनेटेड मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट होता है, जिसमें एक कंपोजिट जो होते हैं वो लेयर्स की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर मटेरियल की आप लगा रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द लैमिनेटेड टाइप ऑफ कंपोजिट। तीसरा होता है आपका फायर कंपोजिट। फायर कंपोजिट क्या होगा, जब नॉट फायर, फाइबर कंपोजिट, मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स होगी और इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप फाइबर्स ऐड करते जा रहे हो, जैसे फाइबर्स ऐड कर दिए, ऐसे फाइबर लगा दिए, इसके अंदर और ऐड कर दिए, फाइबर्स आप लोग लगाते जा रहे हो, तो ये आपका फाइबर कंपोजिट हो गया। ठीक है, और एक होता है आपका इनफिल्ट्रेशन कंपोजिट। और जनरली आपके जो यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हो, ये आपके मोनोफिलामेंट्स हो गया, ये विकर्स हो गया, शॉर्ट फाइबर्स हो गया, ये पार्टिकल्स, ये आपके पास मैट्रिक्स की, इसके अंदर आपने फाइबर्स को यूज किया, लॉन्ग फाइबर्स आपने यूज किए और आपका मटेरियल बन गया। इसके बाद आप लोगों ने शॉर्ट फाइबर्स, जिनको हम विकर्स भी बोलते हैं, विकर्स या शॉर्ट फाइबर्स, मतलब फाइबर्स, लंबे फाइबर्स को आपने काट के डाला है, तो इनको चॉप्ड फाइबर्स भी बोलते हैं, शॉर्ट फाइबर्स भी बोलते हैं या विकर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरे आपके हो गए पार्टिकल फॉर्म, मतलब बहुत ज्यादा छोटे अगर आप लोग उनको कर दोगे फाइबर्स को, या बहुत जो छोटे पाउडर की फॉर्म में अगर आप उसको जनरली यूज करोगे, तो वो आपका जो मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट तो होगा, लेकिन पाउडर, उसके अंदर जो रीइंफोर्समेंट किया गया है वो रीइंफोर्स आपका पाउडर की फॉर्म में होगा। इसमें छोटे फाइबर्स होते हैं, इसमें लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट: डिस्पर्जन, लेयर, दैट इज लैमिनेटेड फाइबर कंपोजिट, एंड इनफिल्ट्रेशन कंपोजिट। ओके, इनफिल्ट्रेट whenever we are using the form of powder. Moving to the next thing, the metal matrix composite. This is the definition of metal matrix composite. So a metal matrix composite is shortly we call them MMCs, is a composite material which with at least two constituent parts, one being a metal. ठीक है, तो जो आपका मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट होता है, वो मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट आपका कैसा कंपोजिट होता है, एक ऐसा कंपोजिट होता है जिसमें कम से कम दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट होने चाहिए और उसमें एटलीस्ट एक मेटल होना चाहिए, याद रखना, जो आपका मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट होगा, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स होते हैं, इसमें एक आपका रेनफोर्समेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है और एक आपका मैट्रिक्स की फॉर्म में यूज किया जाएगा। द अदर मटेरियल्स मे बी द डिफरेंट मेटल और अनदर मटेरियल सच एज सेरामिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सेट्रा। तो एक तो मेटल होगा ही, लेकिन जो दूसरा मटेरियल आपका हो सकता है वो आपका सेरामिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है और एक अदर मेटल भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग अबाउट द मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट इज द कंपोजिट दैट इज बीइंग फॉर्म्ड by combining two constituent part by combining two constituent materials in which at least one of them is a being metal and the other material may be the ceramic, may be the organic compound or other metal. Okay, now when at least three materials are present in it, it is called hybrid composite. तो अगर हम हाइब्रिड कंपोजिट की बात करेंगे तो हाइब्रिड कंपोजिट में कम से कम तीन मटेरियल्स अलग अलग होते हैं, थ्री मटेरियल्स. Suppose whenever I am saying that I am preparing a metal matrix composite, one being aluminium, second being alumina, and third being silicon carbide. So this type of composite is the hybrid composite. One, I am forming a metal matrix composite with aluminium and alumina, Al2O3. So this is your metal matrix composite, MMC, metal matrix composite. But whenever I am adding silicon carbide in it also, then the composite form will be the hybrid composite. तो hybrid composite में क्या होता है, कम से कम तीन, अगर आप तीन मटेरियल्स आपके प्रेजेंट हैं कंपोजिट के अंदर, तो वो आपका हाइब्रिड कंपोजिट होगा. ठीक है,
अब कुछ लोग मुझसे बोलेंगे सर आप ये बताइए, आपने तो ये अलॉय की डेफिनेशन भी बताई थी कि उसमें एक मेटल होना चाहिए। ये मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट के केस में बात कर रहा हूँ, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट में। अगर हम केवल कंपोजिट की बात करेंगे, तो कंपोजिट में आपके मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, डिपेंड्स करता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट आर द कंपोजिशन। सो द मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स आर जनरली मेड बाय डिस्पर्सिंग ए रीइंफोर्सिंग मटेरियल इनटू अ मेटल मैट्रिक्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास होता क्या है, एक मेटल मैट्रिक्स होता है, और इस मेटल मैट्रिक्स के अंदर, इस मेटल की मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, दूसरा मटेरियल, चाहे वो फाइबर की फॉर्म में हो सकता है, छोटे छोटे फाइबर्स की फॉर्म में हो सकता है, पाउडर की फॉर्म में हो सकता है, इनको जब इसके अंदर मिक्स किया जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है, तो जो आपको कंपोजिट बनता है वो मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट हो सकता है, ठीक है। द रीइंफोर्समेंट सरफेस कैन बी कोटेड टू प्रिवेंट ए केमिकल रिएक्शन विद द मटेरियल मैट्रिक्स रिएक्शन। याद रखना, देखो इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जो आप रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हो वो इसके साथ एकदम एक फ्यूज हो जाए ना, जरूरी नहीं है वो फ्यूज हो जाए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो आप यूज कर रहे हो, जो रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हो, उसकी कोटिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि उसकी और इसके साथ रिएक्शन ना हो पाए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कार्बन फाइबर्स आपने ऐड कर दिए, दीज आर द कॉमनली यूज्ड इन एल्यूमिनियम मैट्रिक्स टू सिंथेसाइज और कंपोजिट सो, ठीक है। तो अगर मान लिया कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, सपोज वी आर हैविंग एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम की मैट्रिक्स हमारे पास बनी हुई है, मैट्रिक्स एक तरीके से आप ब्लॉक समझ लो, ठीक है। ये एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम के अंदर मैंने क्या किया, कार्बन फाइबर्स लिए, कार्बन फाइबर्स छोटे छोटे ये लंबे लंबे फाइबर्स हैं, और इनको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया लाइक दिस। आई हैव अरेंज्ड दीज फाइबर्स इन दिस एल्यूमिनियम, then we are producing the metal matrix composite with aluminium as a matrix and carbon fiber as a reinforcement, okay. The matrix is a monolithic material into which the reinforcement is embedded. तो याद रखना, you have to remember the definition of the matrix. What is matrix? matrix क्या है, एक monolithic material होता है, एक सिंगल मटेरियल होता है जिसमें कि आप रीइंफोर्समेंट को एम्बेड कर रहे हो, इसके अंदर ऐड कर रहे हो, और जो एंड इज कंप्लीटली कॉन्टिन्यूअस, जो कैसा है आपका पूरी कॉन्टिन्यूअस है, इसमें कोई भी डिस्क्रिटाइजेशन नहीं है, ठीक है। दिस मीन्स दैट देयर इज अ पाथ थ्रू द मैट्रिक्स टू एट एनी पॉइंट इन द मटेरियल, अनलाइक टू मटेरियल सैंडविच टुगेदर। तो अगर हम मैट्रिक्स की बात करेंगे, एक पाथ होता है थ्रू द मैट्रिक्स टू एनी पॉइंट इन द मटेरियल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करना पड़ता है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मैट्रिक्स इज यूजुअली ए लाइटर मेटल सच एज एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम। रिमेंबर वन मोर थिंग, यू कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, यू कैन बी आस्क्ड व्हाट आर अल्ट्रा लाइट मटेरियल्स। आई हैव ऑलरेडी रिमाइंडेड यू सो मेनी टाइम्स. Any one of you will define the term ultralight materials. What are ultralight material? Ultralight materials. Yes. केवल इतने से काम नहीं चलेगा. अगर आपको अल्ट्रालाइट मटेरियल की बात करनी है तो मैं आपको लिखवा देता हूं अल्ट्रालाइट मटेरियल के बारे में. सुन लो जरा. अल्ट्रालाइट मटेरियल्स. Ultralight materials are those materials having number one, पहला low density, second ये तो है लेकिन दूसरा नंबर हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ये ज्यादा होना चाहिए और हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए. तो अगर बेसिक जो पैरामीटर है अल्ट्रालाइट मटेरियल की बात करेंगे वो आपके हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो के अंदर आना चाहिए. स्ट्रेंथ भी अच्छी हो और वेट भी कम हो. आपका कार्बन फाइबर, अगर हम बात करेंगे कार्बन फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्बन फाइबर. अब अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो वेरियस एग्जांपल्स ऑफ अल्ट्रालाइट मटेरियल्स आर एल्यूमिनियम, लाइट होता है. इसके अलावा टाइटेनियम हो गया, लाइट होता है, हाई स्ट्रेंथ होती है टाइटेनियम. इसके अलावा आप क्या हो गया मोलिब्डेनम, हो गया मैग्नीशियम. दीज आर द अल्ट्रालाइट मटेरियल्स विच हैविंग
वेरी हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट। अगर हम वेट की बात करेंगे उसके कंपेरिजन में हाई इनकी वैल्यू हाई स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो ये जरूरी चीज है, आपको इस तरीके से लिखना है अल्ट्रालाइट मटेरियल्स। अब अल्ट्रालाइट मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं इनको? इनका यूज करने का बात यह है, अगर स्ट्रेंथ अच्छी है, आपको कम वेट में मिल रही है, अगर आप इनको व्हीकल में यूज कर रहे हो, सपोज व्हीकल में यूज कर रहे हो, तो इन व्हीकल का जो वेट हो जाएगा वो कम हो जाएगा। अगर वेट कम होगा तो फ्यूल कम लगेगा, फ्यूल कम लगेगा तो इफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, इफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी ना, इंक्रीज करेगी। हम यही तो चाहते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, एरोस्पेस की बात करेंगे तो एरोस्पेस मटेरियल्स में भी तो यही सब आते हैं भाई। हवाई जहाज एरोप्लेन्स आप उड़ा रहे हो, ठीक है, हवाई जहाज एरोप्लेन्स आप लोग उड़ा रहे हो, ये जब उड़ेगा आप लोग मुझे बताओ, क्या अगर ये हैवी होगा, स्ट्रेंथ हमें अच्छी चाहिए होती है, अगर ये हैवी होगा तो क्या इसको ऊपर ले जाने के लिए हाई फ्यूल नहीं यूज किया जाएगा? क्यों यूज किया जाएगा ना? तो हम चाहते हैं कि लाइट वेट हो, लाइट वेट हो, इससे एफिशिएंसी अच्छी होगी, फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो द मैट्रिक्स जनरली यूजेस अ लाइटर मेटल सच एज एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड प्रोवाइड्स अ कंप्लाइंट सपोर्ट फॉर द रीइंफोर्समेंट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये तो हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ लिया कि मैट्रिक्स क्या है। अगर रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है? द रीइंफोर्समेंट मटेरियल इज एम्बेडेड इनटू द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जिस मटेरियल को आप एम्बेड कर रहे हो, जिस मटेरियल को आप ऐड कर रहे हो, चाहे वो पार्टिकल्स की फॉर्म में हो, चाहे वो फाइबर्स की फॉर्म में हो, लॉन्ग फाइबर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो चॉप्ड फाइबर्स की फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे वो विकर्स की फॉर्म में हो, विकर्स की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में आप जिस मटेरियल को मैट्रिक्स के अंदर एम्बेड कर रहे हो, मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इट इज यूज्ड टू चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज वियर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी, दीज थिंग्स। The reinforcement can be either continuous, can be discontinuous। जरूरी नहीं है कि सारे फाइबर्स आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करोगे, वो मतलब आप बोल सकते हो वो एक तरीके से स्टैगर्ड भी रह सकते हैं। ठीक है, जनरली जो रीइंफोर्समेंट है मैट्रिक्स मेटल कंपोजिट के अंदर, वो मैनिफोल्ड डिमांड प्रोफाइल के अंदर है, ये बहुत ज्यादा डिमांडेड है। ठीक है, इन द पर्टिकुलर प्रोडक्शन इंडस्ट्री एंड फॉर द प्रोसेसिंग। So the reinforcement for the matrix composites have a manifold demand profile which is determined by the production and processing and by the matrix system of the composite materials. The following demands are generally applicable। क्या क्या demands है जो हम reinforcement material यूज कर रहे हो, उसकी क्या क्या डिमांड है? डेंसिटी कम होनी चाहिए, मैकेनिकली कंपेटेबल होना चाहिए, कोई भी रिएक्शंस ना हो, थर्मली स्टेबल होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस अच्छा होना चाहिए, कंप्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, गुड प्रोसेसिंग एबिलिटी और इकोनॉमिक होना चाहिए। ऐसा ना हो बहुत ज्यादा महंगा हो तो कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाए, तो ये सारी चीजें भी हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। किस तरीके से बनाते हैं, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू जनरली फॉर्म द मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, यू कैन सी हियर। सो हियर वी कैन सी the liquid metal state processing of metal matrix composite। इसके बाद स्टायरिंग, डिसकंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, थाइक्सोफॉर्मिंग, ये मतलब डिफरेंट मेथड्स है किस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हो। पार्टिकल रीइंफोर्समेंट, कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रूजन, फोर्जन, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, प्रेशर कास्टिंग और रीमेल्टिंग ऑफ द लिक्विड गैस प्रेशर, ये सब इसको ज़्यादा चीज़ें देख लेना, नियर नेट शेप आर फॉर्म। तो दीज आर द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, यू कैन सी दिस वन। थोड़ा बहुत पढ़ लेना इनके बारे में, ज्यादा चीजें नहीं है। नाउ सो जनरली द नेक्स्ट direct casting, how do we generally cast directly these materials? So here we are having the melted form of the matrix in the melt form, and this is the arrangement for the heating arrangement, and this is the preform, and here we are having the pusher, and this is the pressure direction। we are using this continuous die in the form of, और ये आपकी प्रेस टेबल होती है, ये बेस प्लेट होती है, ये आपकी कोर होंगी, ये डाई कास्टिंग, ये डाइज होगा, ये गेट होगा, शूट कंटेंडर। ये मतलब सिंपल डाई कास्टिंग में जिस तरीके से प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, वहां से भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं आपका मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट की, तो किस तरीके से वेरी करती है, यू कैन सी ओवर हियर। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे आपका टेम्परेचर है इस साइड में, और यहाँ आपका एक्सपेंशन परसेंटेज है। तो जैसे जैसे अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, तो परसेंटेज एक्सपेंशन जो आपको देखने को मिल रहा है मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा है, और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन कार्बाइड के अंदर कम है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग डिस्कस करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये स्ट्रेंथ के बेसिस पे है कि अगर हम वॉल्यूम रेनफोर्समेंट अगर हम लोग करते जा रहे हैं तो किस तरीके से बाकी अदर पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ द वॉल्यूम रिइंफोर्स्ड टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम अलॉय मैट्रिक्स कंपोजिट्स, CNP रेफर टू द कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स एंड C जो कॉन्टिन्यूअस फाइबर, P इज द पार्टिकुलेट्स कंपोजिट्स, द वैल्यू ऑफ C। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन कार्बाइड का मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट बना रहे हैं और ये जो टेम्परेचर रेंज है हमारी 200 से 250 के आसपास, 200 से 300 के बीच में, तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम परसेंटेज इंक्रीज करते जा रहे हैं सिलिकॉन कार्बाइड का, ठीक है, इसके अंदर जब ऐड करते जा रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज, वॉल्यूम अगर परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम और एल्यूमिना की बात करेंगे तो इसमें भी स्ट्रेंथ इसकी अच्छी इंक्रीज होती जा रही है। और एल्यूमिनियम और अगर बी अगर बात करेंगे तो यहां पर भी स्ट्रेंथ अच्छी देखने को मिलेगी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये डिक्रीज हो जाएगी। ये एक और कर्व आप लोग देख सकते हो हियर, इफेक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम का जो यंग्स मॉडुलस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है अगर आप लोग रीइंफोर्समेंट की बेसिस पे बात करेंगे तो यंग्स मॉडुलस बढ़ रहा है घट रहा है। अगर एल्यूमिनियम में पार्टिकल्स, विस्कर्स और डिसकंटिन्यूअस फाइबर आपने ऐड किए हैं, ठीक है, तो सिंपल एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ ये है, अगर आपने इसके अंदर एल्यूमिना 20% एल्यूमिना ऐड किया है तो उसका यंग्स मॉडुलस और अच्छा बढ़ गया, और अगर 20% सिलिकॉन कार्बाइड ऐड किया तो और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, और अगर लॉन्ग और कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स आप यूज कर रहे हैं तो इसमें और ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, वैसे आप लोग जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें पढ़ सको, लेकिन हाँ आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। आपका जो मेन मोटो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट क्या होता है, किस टाइप से बनता है, और रीइंफोर्समेंट क्या होता है, और ये फाइबर्स, ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं, आपको बेसिक आइडिया इनका होना चाहिए। ठीक है, हायर थर्मल डिफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस क्या होती है, तो थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन थर्मल एफिशिएंसी, लो फटीग रेजिस्टेंस होती है, रीइंफोर्समेंट और मैट्रिक्स इंटरफेस, ये इनका अच्छा हाई स्ट्रेंथ हमें मिलनी चाहिए इससे जो फॉर्मेशन हमारा हो रहा है। बाकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसको, ड्राइव शाफ्ट फॉर द पीपल एंड लाइट मोटर व्हीकल, जो लाइट मोटर व्हीकल्स होते हैं उनकी ड्राइव शाफ्ट बनाने के लिए यूज करेंगे। इसके अलावा वेंटेड पैसेंजर्स कार ब्रेक डिस्क में यूज करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग रिम में यूज करते हैं, डिस्क ब्रेक कैलिपर जो बॉक्स होता है इसमें यूज करते हैं, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। पिस्टन, लाइट मटेरियल डीजल पिस्टन में यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फाइबर्स हम लोगों ने ऐड करके बनाया है। ब्रेक डिस्क पार्टिकल्स जो होते हैं रीइंफोर्स्ड विद एल्यूमिनियम, ठीक है, डिस्क ब्रेक जो होती है वहां पर भी हम लोग उसको यूज करते हैं। ड्राइव शाफ्ट, ये आप लोग देख सकते हो पैसेंजर कार्स में जो ड्राइव शाफ्ट होती है, ठीक है, ये ड्राइविंग शाफ्ट जो होती है ना, ये आपकी डिस्क ब्रेक में ये कैलिपर बॉक्स होता है, वहां भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए। इसके और एप्लीकेशंस आप तो देख सकते हो, माइल्ड फ्यूजलैग स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस शटल ऑर्बिट शोइंग बोरोन एल्यूमिनियम, बोरोन और एल्यूमिनियम ट्यूब्स आप लोग देख सकते हो स्पेस शटल में हम लोग यूज कर रहे हैं, लाइट होता है तो ये भी यूज कर सकते हैं। और ऑब्वियसली एल्यूमिनियम हाई गेन एंटीना वेव गाइड्स बूम फ्रॉम द हबल स्पेस स्टेशन, ये लेफ्ट बिफोर द, मतलब ये भी है, यहाँ भी हम लोग स्पेस स्टेशन में भी लाइट मटेरियल को बहुत कंपोजिट्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट सिस्टम, इसमें आपका एल्यूमिनियम मैट्रिक्स यूज किया जाता है, ये भी आपका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स, तो फाइबर की फॉर्म में बोरान, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिना, ग्रेफाइट, ये भी यूज किए जा रहे हैं। अगर डिस्कॉन्टिन्यूअस फाइबर की बात करेंगे, छोटे छोटे फाइबर्स की बात करेंगे, तो आपका एल्यूमिनियम और एल्यूमिना, सिलिका, ये भी यूज किया जा रहा है। विकर्स की फॉर्म में हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड को यूज कर रहे हैं, पार्टिकुलेट्स की फॉर्म में सिलिकॉन कार्बाइड, बोरान कार्बाइड यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स में आप ग्रेफाइट और एल्यूमिना यूज कर सकते हो। विस्कर्स में सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, पार्टिकुलेट्स में आपका टाइटेनियम और कार्बाइड हो गया, कॉपर मैट्रिक्स ये हो सकता है। तो दिस इज you can take an idea of these materials and can form the metal matrix composites for the project। जिनको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है तो वो एल्यूमिनियम के अंदर, एल्यूमिनियम की मैट्रिक्स के अंदर ये सारी चीजें, बोरॉन, सिलिकॉन कार्बाइड या एल्यूमिनियम ग्रेफाइट, ये सारी चीजें मिला करके आप लोग कंपोजिट बना सकते हो। दिस में बी कंसिडर्ड फॉर योर प्रोजेक्ट ऑल्सो। यहाँ से आपको प्रोजेक्ट का आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आप लोग क्या क्या कंपोनेंट्स मिला सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा पार्टिकुलेट्स, विकर्स, ये सारी चीजें अगर आप लोग मिला दो एक तरीके से कि एल्यूमिनियम मैट्रिक्स कंपोजिट लिया, इसमें आपने कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स भी डाले हैं, कुछ डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर्स भी डाले हैं,
कुछ विकर्स भी डाले हैं, पार्टिकल्स भी डाले हैं, इस तरीके से डालें और देख रहे हो कि किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज में इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, अब मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स की एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो टेम्परेचर कैपेबिलिटी हो सकती है, हाई टेम्परेचर में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। फायर रेजिस्टेंट मटेरियल की तरह यूज किए जा सकते हैं, दे कैन बी यूज एज अ फायर रेजिस्टेंट मटेरियल। हाई ट्रांसफर्स स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ भी मिलेगी, स्टिफनेस भी मिलेगी। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, कि ये मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जिससे इसकी इनकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी और कोरोजन नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होगी, रेडिएशन रेजिस्टेंस अच्छी होगी। यहाँ पर आप काम कर सकते हैं कि ये रेडिएशन जो निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाए। न्यूक्लियर मटेरियल्स की तरह भी ये काम कर सकते हैं। तो एक बार देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोग नॉर्मल मटेरियल्स हैं उनको रेडिएशन एब्जॉर्प्शन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, रेडिएशन से रेजिस्टेंस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। फैब्रिकेबिलिटी, विकर्स, पार्टिकुलेट्स, कन्वेंशनल मेटल वर्क्स इक्विपमेंट्स, यहाँ भी हम लोग इनको यूज करते हैं, ये इनके पर्टिकुलर एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज ऑब्वियसली थोड़ी कॉस्ट इनकी ज्यादा पड़ती है। रिलेटेबिलिटी, इनके लिए एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं, इनको बनाने के लिए थोड़ी सी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत पड़ती है। वी हैव टू प्रिपेयर ए पर्टिकुलर special type of setup to manufacture these types of material and the complex fabrication methods, that is fiber reinforcement। थोड़ा सा कास्टिंग में तो मेल्ट करो और डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम फाइबर्स रीइंफोर्समेंट सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें ये थोड़ा सा पर्टिकुलर डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, चलिए, तो ये इसका कंक्लूजन है हमारा कि मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स ऑफर सफिशिएंट प्रोमिस एंड हैव रीच्ड द डिग्री ऑफ मैच्योरिटी एंड दैट इंडिकेट्स एन एक्सपेंशन ऑफ देयर यूज to realize the full potential. However, these composites deserve greater attention and support। composites ज़्यादातर यूज किए जा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा और इन पे फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे टाइप्स के जो करंटली मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट हम लोग यूज कर रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट में है। जैसे आपका बोरान एल्यूमिनियम को, बेरिलियम टाइटेनियम, बोरान टाइटेनियम, ग्रेफाइट एल्यूमिनियम, ये रिइंफोर्समेंट मटेरियल, रिफ्रैक्टरी मटेरियल को आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका एक तरीके से प्रोजेक्ट में भी चीजें यूज की जा सकती हैं अगर थोड़ा सा यूज कर माइंड चलाएं तो। द बोरॉन reinforced aluminum system is the most advanced stage of the development of the metal matrix composite and the property data for this system are sufficient for the design and structure application। तो आप लोग एल्यूमिनियम के अंदर बोरॉन को रीइंफोर्स करके देखो कि क्या प्रॉपर्टीज आप लोगों को मिल रही हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू। एंड ये लेक्चर हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। बाकी आपका बायोमेटेरियल्स रह गया है, तो मैं कल आप लोगों को किसी भी टाइम में क्लास ले लूँगा, एक्स्ट्रा वगैरह किसी क्लास, कल परसों, नहीं तो फ्राइडे को एक क्लास ले लूँगा, आप लोग फ्राइडे को ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।